वीएनएम फाउंडेशन बहुत सारे क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा है। मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन पर जो हमारी एक कोशिश है, पहल प्रोजेक्ट के तहत हम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करके, जो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी है। और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूल में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन नजर आ रहे हैं। और ये एक छोटा सा हमारा ख्याल था कि हम इन बच्चों के साथ काम करें और उसी के साथ आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर वीएनएम फाउंडेशन काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि आर्ट एंड कल्चर, वीएनएम टीवी की बात करूं तो हमेशा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वीएनएम टीवी ने बहुत से काम किए, क्योंकि वीएनएम टीवी के जो फाउंडर हैं नफीस खान सर, वो खुद ही एक बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर हैं और इसीलिए वीएनएम फाउंडेशन को भी उसी दिशा में उनको ले जाने की उनकी जो सोच है, उसी के तहत हमने डिक्लेयर किया था फोटो कॉन्टेस्ट। आर्ट को बढ़ावा देने के लिए फोटो कॉन्टेस्ट, 2 कॉन्टेस्ट हुए, जिसमें दूसरे कॉन्टेस्ट का आज रिजल्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे साथ 2 विनर भी हैं जिनको प्राइजेस दिए जाएंगे। ऑल गुजरात फोटो कॉन्टेस्ट जब ये डिक्लेयर हुआ, उसका सेकंड कॉन्टेस्ट जब डिक्लेयर हुआ, उसका थीम रखा गया था चाइल्डहुड, और ऑल ओवर गुजरात से करीब 250 से ज़्यादा एंट्री आई। बहुत सारे फोटोग्राफर इसमें जुड़े, अपने अपने काम को उन्होंने भेजा। और चाइल्डहुड की जब बात होती है तो सबके चेहरे वैसे ही मुस्कुराने लगते हैं कि हम बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे और ऐसे बचपन को क्लिक करेंगे जो आज का दौर जो है उस बचपन को कैमरे में कैद करने की कोशिश हर एक फोटोग्राफर की होती है। और ऐसे कई बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें हमें मिली थी। जैसे मैंने कहा 250 से ज़्यादा एंट्री इसमें आई, और इसमें कौन विनर रहा है उसके बारे में मैं कहूँगी कि मनीष इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे। इस कॉन्टेस्ट को जजिंग हुआ, उसके बारे में भी मनीष ज़्यादा जानकारी देंगे। तो मनीष, ओवर टू यू। ચાઇલ્ડહુડ કોન્ટેસ્ટ જ્યારે ડિક્લેર કરી ત્યારે અમને હતું જ કે આ સબ્જેક્ટ એટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે ઘણા બધા ફોટોગ્રાફર્સ આમાં ભાગ લેશે, અને એવું જ બન્યું કે જે એન્ટ્રી આવી એ રેકોર્ડ બ્રેક જેવું હતું કે ફર્સ્ટ કોન્ટેસ્ટમાં જે એન્ટ્રી હતી એના કરતાં 3 થી 4 ગણી વધારે એન્ટ્રી આ સેકન્ડ કોન્ટેસ્ટમાં આવી, અને આખા ગુજરાતમાંથી અલગ અલગ નાના ગામોમાંથી પણ અને મોટા શહેરોમાંથી પણ એન્ટ્રી આવી. એટલે ફોટોગ્રાફરની સાથે સાથે એમેચ્યોર લોકોએ પણ એટલો જ પાર્ટ લીધો, રસ લીધો આની અંદર. ફોટોગ્રાફ્સ લગભગ 250 થી 300 જેવા ફોટોગ્રાફ્સ, અને એ બધા ફોટોગ્રાફ્સ અલગ અલગ વિષય પર જે હતા. એટલે અમને એવું લાગ્યું કે આ થોડુંક બધાને ઇન્ટરેસ્ટ પડી રહ્યો છે આમાં, અને બધા સરસ રીતે આની અંદર જોડાઈ રહ્યા છે. તો એનું જજિંગનો જે પ્રોસેસ ચાલ્યો હતો ત્યારે દરમિયાન એવું થયું કે આ આટલા બધા ફોટોગ્રાફ્સમાંથી એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોટોગ્રાફ્સ લઈને એને રજૂ થાય તો, અને એવું કંઈક કેટલોગ જેવું લોકો સુધી પહોંચે કે એક સારું ડોક્યુમેન્ટેશન લોકો પાસે રહે, નહીં કે સોશિયલ મીડિયા પર કશે મૂક્યું હોય ને પછી બધું ભૂલાઈ જાય. એટલે કે બહુ સારું સ્ટોરેજ પણ થાય અને લોકો પાસે કાયમી રહે, અને એક સ્ટડી કરવા માટે એક રેફરન્સ તરીકે પણ ચાલે. એટલે બહુ સરસ એનું કેટલોગ પણ બન્યું છે. અને એમાં જે 3 જણને પસંદ કરીને પિક્ચર્સ લેવાના હતા, એટલે 3 અલગ અલગ વેરિએશનવાળા ફોટોગ્રાફ્સ આવે તો લોકોને પણ એ ઇન્ટરેસ્ટ પડે કે 250-300 ફોટોગ્રાફ્સની આ 3 ફોટોગ્રાફ્સ જે અલગ નીકળ્યા છે અને જે જજને ગમ્યા છે. તો એવા ફોટોગ્રાફ્સ હોય છે જે જજિંગ કરતી વખતે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિષયમાં, કે દરેક ફોટોગ્રાફરને બાળપણ ક્યાંક ને ક્યાંક ક્લિક થતું જ હોય. એટલે એવો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે કે ક્યાં પણ ગયા હોય તો એને લગતી ફોટોગ્રાફ્સ એ જુએ ને આકર્ષાય એ નાની નાની ક્રિયાઓથી ને. એટલે પોતે ક્યાંક ને ક્યાંક કોક ને કોક વિષય પર કનેક્ટ થતો જ હોય એ ફોટોગ્રાફર, કે એને જે જોયેલું માણેલું હોય એ બધી વસ્તુઓ એના ફોટોગ્રાફ્સમાં ઝીલાય. તો એવા 3 ફોટોગ્રાફ્સ અમે, હું, નફીસભાઈ અને બિપિનભાઈ, અમે 3એ જજિંગ કર્યું. એ દરમિયાન એવા 3 ફોટોગ્રાફ્સ હતા. એમાંથી એક ફોટોગ્રાફ્સ હતો અનવરભાઈ વોરાનો, જે પાદરા રહે છે. બહુ સરસ ફોટોગ્રાફ્સ છે, અને 2 જે નિર્દોષ મસ્તી છે એ બાળપણમાં જ હોય છે, અને એ ફોટોગ્રાફની અંદર એ બહુ સરસ દેખાય છે. બીજો એક ફોટોગ્રાફ છે મધુભાઈ ખેરેનો, જે વડોદરાના છે, અને એમનું પણ ફોટોગ્રાફ સરસ છે કે નાની ઉંમરની અંદર બાળપણમાં જ જે કામ પર પ્રત્યે ધ્યાન આપવાનું હોય, કાં તો કામ કરવામાં લાગી જવાનું હોય,
એટલે એવા ફોટોગ્રાફ્સ પણ આની અંદર ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતા કે જલ્દી અત્યારે એવા બાળકોની અંદર મેચ્યોરિટી બહુ જલ્દી આવે છે, બીજી બધી વાતોને બહુ જલ્દી એ સમજી લે છે. અને ત્રીજો એક ફોટોગ્રાફ છે અમિત મકવાણા, જે અમદાવાદના છે, અને એક નાનું બાળક સરસ હસે છે, ખિલખિલાટ. એટલે આવી બધી મોમેન્ટ છે જે સોશિયલ મીડિયાની પાછળ લાગેલા લોકો હોય છે એના કરતાં બહાર નીકળીને રિયલ વર્લ્ડને જોઈને જે એન્જોય કરવાનું છે, કાં તો ફોટોગ્રાફર એને ઝીલે છે, તો એક બહુ સરસ ડોક્યુમેન્ટેશન લોકો સમક્ષ મુકાય છે. તો આ ચાઇલ્ડહુડના 3 ફોટોગ્રાફ્સ, બીજા પણ ઘણા બધા સરસ સરસ ફોટોગ્રાફ્સ હતા, તો એ બધા ફોટોગ્રાફ્સનું એક સરસ કેટલોગ બન્યું છે જે એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એટલે આમ તો જે આર્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હોય એ લોકોએ જોવા જેવું છે. તો આ એપિસોડ દરમિયાન પણ એ બધા ફોટોગ્રાફ્સ સાથે જોવા મળશે. આર્ટ માટેની સારામાં સારી એક્ટિવિટી આ અત્યારે VNM ફાઉન્ડેશન દ્વારા થઈ રહી છે. તો આમ તો સતત ચાલે ને એમાં બહુ મોટું રિઝલ્ટ મળી શકે. અને અત્યારે વડોદરામાં આ VNM દ્વારા જે આર્ટ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે એ સતત ચાલી રહી છે. દરેક અલગ અલગ ફિલ્ડમાં તો છે જ, પણ ફોટોગ્રાફીની અંદર તો આ એક મારા હિસાબે બહુ સરસ અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. અને હું નસીબદાર છું કે એની સાથે હું જોડાયેલો છું. અને એક તો એન્ટ્રી આવે એ જોવાની, પછી જજિંગનો પ્રોસેસ અને આવી રીતે ડિસ્કશન. તો આ એક અમારા માટે પણ શીખવાનું અને સમજવાનું બહુ સરસ વસ્તુ મળી રહી છે કે આવા સબ્જેક્ટ દ્વારા ફોટોગ્રાફ્સને જોવાના, એમાંથી સિલેક્ટ કરવાના અને એના માટેના રીઝન, અને દરેક જજ પોતપોતાનું ડિસ્કશન જે કરતું હોય છે. તો મારા માટે એક તક હોય છે કે બંને સિનિયર ફોટોગ્રાફરો સાથે જજિંગ કરવું અને એમની વાતો જાણવી. तो वो इंटरेस्टिंग है. इससे सिर्फ फोटोग्राफर को जो मोटिवेशन मिलता है वो तो है ही है, मगर इतने सारे फोटोग्राफर्स का वर्क देखने का जो एक मौका मिल रहा है सभी को. जैसे ये सारे फोटोग्राफ्स, मनीष ने कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत एक कैटलॉग बनाया है, और ये इसमें जो बेहतरीन फोटोग्राफ्स हैं उस फोटोग्राफ्स को हम पोस्ट भी करने वाले हैं हमारे VNM फाउंडेशन के पेज पर, इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है वहां पर भी. तो उसे भी आप जरूर से देखें और आप उससे भी काफी कुछ सीख पाएंगे. जो फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, इस फील्ड में अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसे फोटोग्राफर के लिए, जो नवयुवा जो हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक लेसन उनको भी मिलेगा कि ये फोटोग्राफ देखें और हम भी कुछ सीखें. तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की ओर चलते हैं. अनवर वोरा जी को प्राइज देंगे बिपिन पटेल, जो सीनियर फोटोग्राफर हैं खुद ही, और इसे जज भी उन्होंने किया है. थैंक यू सो मच. कॉन्ग्रेचुलेशन. VNM ફાઉન્ડેશન એ દરેકને આર્ટ એક્ટિવિટી કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે, દરેક કલાકારોને પ્રોત્સાહન આપે છે, દરેક નવા ફોટોગ્રાફરોને, જૂના ફોટોગ્રાફરને આર્ટમાં પ્રમોટ કરે છે, અને આર્ટનું લક્ષ્ય લઈને એ લોકો ચાલતા હોય છે. એની કલ્ચર એક્ટિવિટી પણ ખૂબ સારી હોય છે. તો એ બાળપણમાં જે મેં ફોટોગ્રાફ્સ મૂક્યો છે એમાં મારે ફક્ત એટલું જ બતાવવાનું છે કે બાળકોને નાનપણમાં ભણાવવાનું તો બહુ સારી વાત હોય છે, પણ બાળકો ભણતા ભણતા પિતાશ્રીનો ધંધો કરતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે આમાં. આ બંને ભાઈ બહેનની ઉંમર એકની 5 છે અને એકની 7 વર્ષની ઉંમર છે. ફક્ત મારો મેસેજ એટલો છે કે બાળપણ ખોળાઈ ના જવું જોઈએ, બાળપણ ડિસ્ટ્રોય ના થવું જોઈએ. બાળપણને બાળપણમાં ભણાવો, એને તમારી જે એક્ટિવિટી છે ધંધાની એમાં એને ઇન્વોલ્વ ના કરો, અને બાળપણમાં બાળકોને કોઈક એવી આર્ટ એક્ટિવિટી આપો. જે ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશન સબ્જેક્ટ છે બહુ સરસ પસંદ કર્યા છે. અગાઉ હતું એ મોન્સૂન હતું, એમાં એક ફોટો મારો નોમિનેટ થયો હતો. આ વખતે બાળપણ એટલે ચાલુ હતું, એમાં પણ મારે એક ફોટો પ્રાઇઝ મળ્યો, અને એ ફોટામાં મારું બાળપણ પ્રતિબિંબ થયું. કારણ કે જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે આ બધી પ્રવૃત્તિ કરતો હતો, અને VNM ફાઉન્ડેશન આભાર માનીશ કે હવે આ પ્રવૃત્તિ આગળ ચાલી રહે અને કોમ્પિટિશન ચાલે કરે. चाइल्डहुड विषय पर वडोदरा न्यूज मैगजीन फाउंडेशन द्वारा आयोजित द्वितीय तस्वीर स्पर्धा में जो विजेता बने उनको VNM स्टूडियो में पुरस्कृत किया गया, सम्मान किया गया उनका. मेरी तरफ से भी सभी विजेताओं को, और जो बुकलेट में जिनकी तस्वीरों को स्थान मिला है उनको भी बहुत बहुत बधाई. चाइल्डहुड यानी बचपन. मेरे परम मित्र मनीष चौहान एंड बिपिन पटेल जब तस्वीरों का चयन कर रहे थे तो मैं भी वहाँ था.
जब तस्वीरें वो चयन कर रहे थे विजेताओं के लिए और बुकलेट के लिए, तो मुझे भी मेरी बचपन की बहुत सारी यादें ने झकझोर दिया। बहुत सारी यादें आईं, थोड़ा रुआँसा हुआ तो खुशी भी हुई कि बहुत अच्छा बचपन था। तस्वीरें देखते-देखते मुझे ख़ास एक लाइन वो याद आई, जो हम बचपन से तो नहीं लेकिन जवानी से सुनते आए हैं। जगजीत साहब की गाई हुई वो ग़ज़ल और सुदर्शन फ़ाक़िर साहब की लिखी हुई वो नायाब चीज़ जो उन्होंने बचपन की लिखी थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सामान, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इन तस्वीरों में यही लाइनें झलक कर आती हैं। मैं सभी विजेताओं को एक बार बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप इस तरीके के जो हम सब्जेक्ट देते हैं उसके अंदर कसरत से आप जो तस्वीरें भेजते हैं उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये एक फ़ोटोग्राफ़ी को की मश्क यानी एक्सरसाइज़ करने की एक हमारी कोशिश है और फाउंडेशन का जो ध्येय है कि आर्ट को प्रमोट करना, उसी का एक छोटा-सा हिस्सा है और एक छोटा-सा हमारा कदम है। इसको आप हमें इसी तरीके से सराहते रहेंगे और अपनी तस्वीरें भेजते रहेंगे तो ये फ़ोटो स्पर्धा, ये तस्वीर स्पर्धा, फ़ोटो कॉम्पिटिशन जो है वो ये दूसरी बार किया हमने और आगे भी बढ़ती रहेगी। सभी विजेताओं को तहे दिल से बहुत-बहुत बधाई और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह जुड़े रखें। मैं ख़ास तौर से मेरे जो जज साहिबान हैं इनको भी मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आपने इतनी अच्छी तस्वीरों का चयन किया और मुझे मेरे बचपन की यादें दिला दी। शायद ये आप बुकलेट देखेंगे और ये आज जो हम फ़ोटोग्राफ्स आपको दे रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि थोड़े दिन आप बचपन में चले गए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी फोटोग्राफर का शुक्रिया अदा तो नफीस खान सर ने कर ही दिया है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप हमारे संग जुड़ रहे हैं, ये दूसरी कॉन्टेस्ट में इतना बहुत ज़्यादा एंट्री भेजकर इस चाइल्डहुड सब्जेक्ट को आपने सराहा है, नहीं कि सिर्फ वीएनएम फाउंडेशन की इस कोशिश को। तो मुझे लगता है कि ये तीसरा जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पर भी उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा एंट्रीज पूरे गुजरात भर से हमें मिलेगी, यही उम्मीद करते हैं। और अपने काम को सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए नहीं, लोग देखें उसके लिए भी भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट पर जब फोटो कॉन्टेस्ट होता है तो अपना वर्क भेजना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको भी दूसरे फोटोग्राफर के काम को देखने का मौका मिलेगा और आपके काम को और लोगों तक पहुँचेगा। और वैसे भी वीएनएम टीवी का ये वीएनएम फाउंडेशन है तो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हम भी कोशिश करेंगे। वीएनएम टीवी को जिस तरह आप सबने सराहा है, सपोर्ट किया है, हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं, वैसे ही वीएनएम फाउंडेशन के साथ भी ऐसे ही आप सब जुड़े रहें, यही उम्मीद करती हूँ। हमारा हौसला बस इसी बातों से ही बढ़ता रहता है और अच्छे काम करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला से ताले से को बाज लाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV किड्स। आज का जो दौर चल रहा है उसमें बच्चे कितने चीयरफुल हैं और कितने इनोवेटिव हैं, ये सब हम जानते ही हैं ऑलरेडी। और ये सब के पीछे सोशल मीडिया है या फिर हम कहें आजकल का जो वातावरण है उसका बहुत बड़ा रोल है इनके इतने एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। आज हमारे साथ एक बहुत ही चीयरफुल और बहुत ही बबली बच्चा जुड़ रहा है और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हाल ही में इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में ये अपना एक निशाना बना के आए हैं, अपनी एक छाप छोड़कर आए हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अयांश कपूर, जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल 11 महीने के हैं और इनके साथ जुड़ रहे हैं इनके पिताजी जो है मिस्टर पुनीत कपूर। सर, आपका और अयांश दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को बता दूं कि अयांश जो हैं ये दिखते बहुत छोटे हैं पर काम बहुत बड़े बड़े करके आए हैं, और क्या काम करके आए हैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी आपसे। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में मैक्सिमम विसल ट्यून्स आइडेंटिफाइड बाय अ टॉडलर का खिताब ये जीत कर आए हैं। ये करते क्या हैं, इनके पापा जो हैं ये विसल करते हैं और ये विसल से सॉन्ग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इन्होंने कुछ तकरीबन 54 सॉन्ग्स को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है विसल्स उनकी ट्यून्स को सुनते हुए। और ये सॉन्ग्स में बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं और भजन्स भी इंक्लूडेड है, जिसकी छोटी सी एक छवि हम हमारे इंटरैक्शन के थ्रू ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं अयांश के डैड के साथ, मिस्टर पुनीत कपूर के साथ। और पुनीत जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अयांश का जो ये हुनर है उसको आपने किस तरह से परखा, मतलब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि उसमें ये टैलेंट है और इस पे कुछ किया जा सकता है? म्यूज़िक का हमारी पूरी फैमिली को बहुत शौक़ है। मैं भी गाता हूँ, मेरी मम्मी भी गाती हैं, मेरी वाइफ भी म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करती है, तो घर में म्यूज़िक का माहौल तो रहता ही है। तो अयांश छोटा जब बॉर्न हुआ, मतलब गाने उसने आई एम श्योर बहुत सारे सुने होंगे हमारे थ्रू, बट 8-9 महीने का था तो हमने रियलाइज़ किया कि डांस करता है, कुछ ट्यून्स गाता है, गुनगुनाता है, बीट्स पहचानता है। तो ऐसे हमको लगा कि इसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, तो हम लोग इसको नए नए गाने हम लोग सुनते थे, तो आई एम श्योर वो भी हमारे साथ सुनता था। जी जी। फिर एक बार जब हम लोग साथ में पूरा परिवार बैठा था तो मैंने रैंडमली कोई एक गाना विसल किया और अयांश ने उसका जवाब दे दिया। अयांश ने बता दिया कि ये कौन सा गाना है। तो हम लोग सब सरप्राइज हो गए थे। फिर मैंने सोचा ठीक है एक गाना बता दिया, बट मैं चेक करता हूँ कि ये
और भी गाने पहचानता है या नहीं। तो अयांश ने वो भी 2-4 गाने वो भी पहचान लिए, तो हम लोग सब सरप्राइज हो गए और हमको लगा कि नहीं कुछ तो बात है। फिर हमने ऐसे जो गाने हमको लगता था कि उसने सुने हैं अभी तक, भजन्स, राइम्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो हमने नोट डाउन किया एंड हमने उसको पूछना शुरू किया एंड ये लिस्ट ऐसे करते करते 50+ हो गई। सो हमको लगा कि डेफिनेटली ये एक टैलेंट है उसके अंदर, गाने पहचानता है। और बड़ी बात ये भी थी कि कई बार हम लोग गाने का अंतरा बजाते थे, I mean, मैं अंतरा उसका प्ले करता था और वो गाने का मुखड़ा बता देता था कि गाना कौन सा है। तो दैट मीन्स कि गाने उसको याद भी हैं और कहीं ना कहीं वो गाने समझ रहा है, सुन रहा है अच्छे से। तो डेफिनेटली वो हमको लगा कि एक टैलेंट है। बिल्कुल टैलेंट है। और जिस तरह हम कहते हैं हमेशा कि हर बच्चा जो है ये यूनिक है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर छुपा होता है। और जिस तरह अयांश के पेरेंट्स ने वो हुनर को बहुत जल्दी परख लिया और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया, और शायद इसीलिए इतनी छोटी उम्र में अयांश जो हैं ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम जो है ये वहाँ पर छाप कर आए हैं। और हम यही दुआ करेंगे कि आगे भी अयांश बहुत अच्छा काम करे और आगे बढ़े और बहुत सारे रिकॉर्ड्स और ब्रेक करें। मैं आप सभी को बता दूं ये छोटू सा टॉडलर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, तो थोड़ा सा आपको स्टूडियो यहाँ वहाँ हलचल वाला मिलेगा, थोड़ी आवाज़ भी आएगी, पर बच्चे बच्चे होते हैं और हम उसके एनर्जी जो है उसे स्टॉप नहीं करना चाहते। तो ज़रूर हम थोड़ा सा अयांश और पापा आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी जो ऑडियंस उस पर बैठी है उसे अगर आप थोड़ी सी झलकी दिखाएं कि अयांश किस तरह से चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल। सो मैं विसल प्ले करूँगा रैंडमली। हमने रिकॉर्ड के लिए भी ये पूरा रैंडमली ही सॉन्ग सिलेक्शन था एंड अयांश ने आइडेंटिफाई किया है। अयांश आप तैयार हैं? देवा देवा कैसे दिया पापा कितने नाम का लेगा? लाम शलाम शलाम दे लाम हे साइलाम Twinkle twinkle little star baby shark where's the bus? Wow, amazing, amazing अयांश, good job, wonderful। आपके ईयर्स तो बहुत ही पावरफुल है अयांश, वेरी वेरी पावरफुल। अयांश को तो आपने सुन ही लिया है और आपने देखा है कि किस तरह कितनी जल्द से वो ट्यून्स आइडेंटिफाई करते हैं और इमिडिएटली बता देते हैं, और इसी तरह उन्होंने इस पे प्रैक्टिस की। और आई एम श्योर जो पेरेंट्स हैं उनके फादर जो हैं उन्होंने काफ़ी इसमें अपना योगदान भी दिया होगा। क्या कहेंगे उस बारे में सर? कितने साल से कितने समय से आप ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसे, और किस तरह की मेहनत इसके पीछे आपने की है? नहीं, सो बहुत ही फ्रैंकली बताऊंगा, हमने कोई भी इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करी जी। रिकॉर्ड का भी हमने कभी नहीं सोचा था। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जब लिस्ट बनानी शुरू करी जस्ट ये देखने के लिए कि अयांश की कितनी कैपेबिलिटी है जी। तो जब वो 50+ सॉन्ग्स हो गए तो हमने चेक किया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक है या नहीं है जी। एंड हमने रियलाइज़ किया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने सोचा कि इसको एक अटेम्प्ट करते हैं एंड उसके लिए हमने अयांश को भी कभी नहीं बोला कि कोई रिकॉर्ड बनाना है या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज वो बहुत छोटा है। सो हमने क्या किया कि एज अ गेम हमने उसको रिकॉर्ड किया जी। तो वो जो 54 सॉन्ग्स थे वो हमने एक चिट पे सॉन्ग्स मेंशन करके मैंने रैंडमली चिट्स निकाले, तो उसको भी मज़ा आ रहा था वो गेम में। और वो रैंडमली सॉन्ग्स निकालने के बाद जो भी सॉन्ग आता था उसको मैं विसल में प्ले करता था और वो आइडेंटिफाई करता था जी। तो हमने कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी। आई थिंक ये उसका ही टैलेंट है, इट्स गॉड गिफ्ट दैट यू नो। एंड उसने वो एबिलिटी दिखाई। आई थिंक हम लोग तो सिर्फ एक मीडियम है तो पूरा क्रेडिट अयांश को ही जाता है, बट जो भी तैयारी करी वो हमने ही एज अ पेरेंट करी है, जस्ट टू वो वीडियो दिखाने के लिए कि उसको एक अटेम्प्ट करने के लिए बस उतनी ही तैयारी करी हमने जी। और अच्छी बात यह है कि वो 54 सॉन्ग्स पूरे कर लेगा, हमको वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। राइट। तो ये 10 मिनट में पूरा उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाया।
उसको शायद पता भी नहीं होगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जी बिल्कुल। एंड वो एक रिकॉर्ड बन सकता है। बट आई थिंक बस हमने एज अ गेम वो सॉन्ग्स प्ले किए एंड ही हैज आइडेंटिफाइड, बस उतनी ही तैयारी थी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बड़ी बात है एंड आई एम श्योर जितनी छोटी उम्र है आयांश की उतनी ही बड़ी ऊंचाइयां पर वो और जाएं और आप लोगों का सपोर्ट उनके साथ बना रहे। आप प्रोफेशनली एक बैंक में काम करते हैं पुनीत जी, और आपने जैसे कहा कि आप भी म्यूजिक में इंटरेस्ट देते हैं, काफी सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स आपने विन किए हैं जी। क्या कहीं ना कहीं आपकी भी विश थी कि आप सिंगिंग फील्ड में आगे बढ़े? वो आई थिंक कोई भी सिंगर की विश रहती ही है जी। मैंने रियलिटी शो भी किया हुआ है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेट किया है जी। वो विश थी, बट आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। तो मैंने प्रोफेशनली बैंकिंग को चूज़ किया जी। और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि बच्चे गाएंगे नहीं गाएंगे, बट ये देख के अच्छा लग रहा है कि उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है एंड गॉड ने वो गिफ्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत खुशी मिल रही है हमको। बिल्कुल अमेजिंग, और आई एम श्योर वो और भी अच्छा करेंगे आयांश, और भी ज़्यादा म्यूज़िक और अपनी जो चीयरफुल स्माइल है उनकी, जो ये मस्ती हो रही है ना, उससे और सबके फेस पे बड़ा वाला स्माइल लेके आएंगे, है ना आयांश? ठीक है, आयांश का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आयांश सबको बताएंगे? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला सितारे से को बाज लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, छोला सितारे से को बाज लाऊंगा, मोटी बिलाना जो मारे मैं जोगमा इसिस्ताय वेलाला अम्बेमा आशीष वेले जोगमाले अम्बेमा जोगमा इसिस्ताय वेलाला अम्बेमा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक की जर्नी तो आपने बताई हमें पुनीत जी, लेकिन अब यहाँ से आगे आप क्या देखते हैं? मतलब ये तो एक आपने डेफिनेटली एक रिकॉर्ड आयांश ने बना लिया है, बहुत छोटी उम्र है, आगे आप क्या सोचते हैं उसके बारे में और कहाँ लेके जाना चाहते हैं? बहुत छोटा है मुझे लगता है, अभी तो स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया है, 6 महीने बाद स्कूल जाएगा, एक नई दुनिया देखेगा एंड आई थिंक हर किसी इंसान को अपना खुद का इंटरेस्ट एक डेवलप करना होता है और उसके बाद उनका खुद का चॉइस होता है कि क्या करना है। हमारा बस यही प्रयास रहेगा कि आयांश को एक म्यूज़िक से जितना हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जितना ज़्यादा उतना कराएं। मे बी शायद क्लासिकल म्यूज़िक भी इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, बट आयांश का कितना इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है और कितना आगे आयांश उसको ले जाना चाहेगा, आई थिंक वो उस पर डिपेंड करेगा। सो हमारा काम है प्लेटफॉर्म देना, चीज़ें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना, बाकी आयांश का ही उसमें चॉइस रहेगा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच आपके जो आपके सजेशंस हैं और आपके फीडबैक है शेयर करने के लिए। आजकल की जो दुनिया है हमारी, जो भागदौड़ वाली लाइफ है, हम इतने ज़्यादा उसमें रैट रेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं कि किसी के बच्चे ने कुछ किया तो हम अपने बच्चे को भी फोर्स करते हैं कि आप भी यही करेंगे। लेकिन मुझे सुन के खुशी हुई है कि आपने जैसे कहा कि आयांश के पीछे आपने कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डाले हैं, जो वो करना चाहते थे और जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी आपने उतना ही उसे करवाया। ज़्यादा फोर्सफुली उसको कोई प्रैक्टिस के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं उस उम्र में, और आगे भी आप उसे उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर कि आपका सपोर्ट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, तो आयांश डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेगा। और जहाँ वो चीज़ें नेचुरली करता है ना, वो ही सबसे बड़ी बात है। आई थिंक वो ही सबके फेस पे काफ़ी बड़ी स्माइल लेके आ सकता है। जो हैप्पीनेस आज आपके फेस पे दिख रही है मुझे एज अ फादर, उनकी मदर के फेस पे, वो बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस और बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये नेचुरली उसने चीज़ें की हैं, आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स के साथ वो चीज़ नहीं करवाई है। बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि जितने अभिभावक कैमरे के उस साइड हमें देख रहे हैं, आप प्लीज़ इन सारी बातों को ध्यान रखें। रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी नहीं है, वो इनका भी मोटो नहीं था। हाँ, हालांकि उनको लगा कि हाँ इतना हो गया है और किसी ने किया नहीं है, इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए,
पर शायद उस मोटो से उन्होंने कभी भी शुरुआत नहीं की थी। तो आप भी यही सोचें कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा रिकॉर्ड नहीं बना सकता, ये अभी हमें समझना ज़रूरी है, लेकिन अपने बच्चे को सही प्लेटफॉर्म देना, सही अपॉर्चुनिटी देना, सही एनवायरनमेंट देना और अपने बच्चे के साथ खड़ा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम हमारे बच्चों के साथ खड़े रहते हैं ना, तो बच्चे को कभी अकेलापन नहीं लगता है। बच्चे को किसी भी एक्सटर्नल इंसान की ज़रूरत नहीं है जो शायद उसे सही ना करते हुए किसी गलत मार्गदर्शन तक ले जाए, वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए पेरेंटल सपोर्ट और पेरेंटल गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कोई भी एज ग्रुप का क्यों ना हो। आयांश तो बहुत छोटू हैं, लेकिन जब भी बड़े होंगे डेफिनेटली पेरेंट्स जब पॉजिटिवली बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तब बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो अलग ही दिखती है, अलग ही इंडिविजुअल के रूप में बच्चे बाहर आते हैं। और हम यही विश करेंगे कि आयांश के साथ साथ आप सभी को ऊपर वाला बहुत सारी दुआएं बख्शे और आप इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें। और आयांश थोड़ा और बड़ा हो जाए और रिकॉर्ड्स ब्रेक करे तो हम वापस आयांश को बुलाएं, है ना आयांश? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आयांश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, आप सभी जानते हैं। आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी जान पाएंगे कि यहाँ पे हर हफ्ते क्या हो रहा है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला से ताले से को बाज लाऊंगा।